Good morning. Am I audible to everyone now? Anji, good morning. ठीक है जी. Before we start with this class, जो students अब offline आना चाहते हैं वो आ सकते हैं. ठीक है. They can come for the offline classes, those who want to. Discuss the first Continental Congress and skirmishes at. अरे क्या करना है ये अंकित? It's not required at all. चलो. Any problem till now in what has been covered in American Revolution, American Civil War? Because ये मेंस का पार्ट है, it is not a part of prelims. वो आपको समझना पड़ेगा. Yes, classes, this GS classes, we would be taking it offline also. Those who want, they can come. हाँ जी, चलो. So today we would be starting off with this topic called as French Revolution. हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन. स्टार्ट करते हैं विद दिस फ्रेंच रेवोल्यूशन. ऑलरेडी अपलोडेड सिग्निफिकेंस के विकी अपलोड कर दिए थे. ऑलरेडी अपलोड है गेट ऑन डिस्ट्रिक्ट. नेक्स्ट डे हो गए थे वो अपलोड. चलो ठीक है. तो टुडे वी वुड बी स्टार्टिंग ऑफ दिस फ्रेंच रेवोल्यूशन दैट टुक प्लेस. जैसे हाँ अपलोडेड हैं. ठीक है. जैसे देयर डिफरेंट रेवोल्यूशंस दैट आर देयर. वॉइस कम आ रही है तो जैसे जैसे पढ़ाऊंगा मेरा ऑटोमेटिकली वो लाउड होता जाऊंगा. इज इट फाइन नाउ पिंकी? डिस्ट्रिक्ट. चलो जी. फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसे कोई भी है, अमेरिकन रेवोल्यूशन किया है. हाँ जी, ऑफलाइन क्लासेस स्टार्टेड फ्रॉम टुडे. The world revolt or a revolution means large scale fundamental changes that are taking place in society, and when it is in the context of politics, it is always accompanied by bloodshed. वर्ड का रेवोल्यूशन का क्या मतलब हो गया? लार्ज स्केल फंडामेंटल चेंजेस that are taking place. Large scale fundamental changes that are taking place that will be leading to different things. When it is in the context of political, it is a bloodshed. It will always be accompanied with bloodshed. हम कहते हैं for example green revolution. Large scale fundamental change accompanied by changes in technology. That can be said कि technology context में हो सकता है. Whatever the word is technological, या economic revolution, या for example हम कहते हैं fourth industrial revolution, या any other industrial revolution, that is accompanied by changes in technology. या what we have did is for या और एक आपको टॉपिक है जैसे revolt of 1857, 1857 का विद्रोह. When or for example the American Revolution, as we have done, there are always certain causes that are there. The causes can be social cause, the causes can be economic, the causes can be political, etc. These things, they are always taking place. Any problem to anyone? मेरे पास तो सही आ रहा है. विशाल एक बार रिफ्रेश कर लो. आई थिंक देयर इज नो टाइम लैग, बिकॉज स्क्रीन वही है जो आपके पास है, सेम स्क्रीन मेरे पास है. It is economic, social, political and other things that are always there. These conditions are already there. For example, the revolt of 1857, these conditions are already there, but there is always an immediate spark that is required. Always an immediate cause that is required. Immediate cause का मतलब कि अगर अभी रिवोल्ट नहीं किया, हाँ जी, हाँ पूछ सकते हो. या इसके जब एक बार खत्म कर लूंगा राहुल तब पूछ लेना. अगर अभी रिवोल्ट नहीं किया तो फिर इसके बाद जीने का भी क्या फायदा. सेम इज द केस.
फॉर एग्जाम्पल व्हेन अमेरिकन रेवोल्यूशन वी डिड, हमने क्या बोला था, सैमुअल एडम्स ने बोला ऑन द वन हैंड यू आर इम्पोजिंग वेरियस टैक्सेस ऑन अस, on the other hand you are allowing British East India Company to import without paying any taxes. दो अलग अलग नीति होगी। अब रिवोल्ट नहीं किया तो फिर फायदा क्या? देयरफॉर बोस्टन टी पार्टी वाला जो फॉर एग्जांपल हमने किया था, एंड नहीं विशाल, देयर इज नो टाइम लैग दैट इज देयर। एनी अदर स्टूडेंट? आप वहां पे कुछ, क्योंकि स्क्रीन सेम है, अगर आपको टाइम लैग है तो मेरे को भी टाइम लैग आएगा। अब देखो इतने स्टूडेंट्स का अगर टाइम लैग नहीं आ रहा तो मतलब कुछ हो सकता है कि आपकी साइड से कुछ हो उधर। ठीक है, थोड़ा सा रिफ्रेश कर लीजिए, हो जाएगा। टैक्सेस आर इम्पोज्ड, सेम इज द केस फॉर एग्जांपल इमीडिएट कॉज इन द रिवोल्ट ऑफ 1857 फॉर एग्जांपल वाज द यूज ऑफ द फॉर immediate spark was there was for example cow and pig, or for example the rifles that were there, rifles की वजह से ही प्रॉब्लम हो गई थी कि अब फॉर एग्जाम्पल दे कंटेन द पॉक और फॉर एग्जाम्पल सूर और गाय का मांस एक्सेट्रा। सेम इज द केस विद अमेरिकन रेवोल्यूशन दैट इज देयर। तो जब भी हम कोई रेवोल्यूशन की बात करते हैं, इट इज लार्ज स्केल फंडामेंटल चेंज दैट इज अकम्पेंड बाय वायलेंस बट इज व्हेन इट इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पॉलिटिक्स। नाउ फॉर एग्जाम्पल, तो एक बात तो श्योर होगी, देयर विल बी वेरियस कॉजेज दैट वुड बी देयर and there will be an immediate cause कि अब तो रिवोल्ट करना ही पड़ेगा जी, नहीं तो प्रॉब्लम है। दिस विल बी लार्ज स्केल फंडामेंटल चेंज। जरूरी नहीं है लार्ज स्केल फंडामेंटल चेंज में हमें किंगशिप को हटा के कुछ फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस करी जाए। दिस इज नेवर द केस। द किंगशिप कैन बी ऑफ टू डिफरेंट टाइप। वन इज एब्सोल्यूट मोनार्की, हाँ जी, क्या होता है एब्सोल्यूट मोनार्की? है होता क्या है? हाँ, मतलब एक ही राजा की चलेगी और कुछ नहीं है। अनदर इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जो बोल रहे हो वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मीन्स किंग तो है लेकिन राजा भी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ही काम करना पड़ेगा। ही और शी इज नॉट हैविंग एन एब्सोल्यूट पावर। एब्सोल्यूट पावर भी कुछ भी है राजे की ही चलेगी। कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की का मतलब है कि राजा है वहां पे लेकिन नाम मात्र का राजा है। बेसिकली कैसे चलेगी? जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविजन दिया हुआ है उतनी ही पावर वो एक्सरसाइज करेगा। ठीक है, फॉर ऑनलाइन ऑल्सो इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, तो दो तरीके की है। ऐसा भी हो सकता है कि रिवोल्ट एंड रेवोल्यूशन हो गया तो किंगशिप के बाद सीधा डेमोक्रेसी आ जाए। ऐसा भी हो सकता है अगर पहले राजा एब्सोल्यूट था, अब एब्सोल्यूट किंगशिप की वजह पे आप कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की की तरफ मूव कर चुके हो। ऐसा भी हो सकता है इसके बाद आप रिपब्लिक की तरफ मूव कर जाओ या सीधा ही रिपब्लिक की तरफ मूव कर जाओ। देयर कैन बी मल्टीपल वेज, हाँ, sort of. There can be multiple ways that can be there, that can be the outcome of a particular revolt. तो एक बात तो श्योर है, there will be various causes that would be there. Same was in the case of, for example, the French Revolution also. The causes will be there. The causes will be रिपब्लिक। देखो अभी पहले भी तो हमने किया था, जैसे अमेरिका वॉज कंसिडर्ड एज अ रिपब्लिक, मतलब क्या है इसका? अमेरिका, जब अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो उसको रिपब्लिक बोला गया था। क्या मतलब है उसका? तो आज़ादी होगी ना। हाँ, स्टेट ऑफ द हेड इज इलेक्टेड। हाँ जी, ठीक है, अमृत आर्य, गुड। स्टेट ऑफ द हेड विल बी इलेक्टेड, वो तो आज़ादी होगी ना। अगर रूल हट गया तो आज़ादी होगी। यहाँ पे स्टेट ऑफ द, जैसे इंडिया इज अ रिपब्लिकन कंट्री हमारा, लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं जब हम प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। चलो, फ्रेंच रेवोल्यूशन, देयर वुड बी वेरियस कॉजेज दैट वुड बी देयर। There will be certain political causes, certain administrative causes, certain economic causes, certain religious causes, certain anything can be there. जब हम बात करते हैं हाँ जी political causes की, हमें देखना पड़ेगा
उस समय में कौन सी डायनेस्टी का रूल हो रहा था जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ? फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ? 1789 में। The French Revolution took place in 1789. So what was going on at that point of time? जो फ्रांस में डायनेस्टी रूल कर रही थी, that was Bourbon डायनेस्टी। It was ruling. What was there were different kings they were there. For example, पहले था जो important king है हमारे लिए, Louis 13, Louis 14, Louis 15, and the last king was Louis 16. These were the different kings. They were king who were ruling at different intervals of time. इसके बाद ये गद्दी के ऊपर बैठा, ये गद्दी के ऊपर बैठा, ये गद्दी के ऊपर। When this was there, he along with his prime minister by the name Richelieu, they introduced the process of centralization. सेंट्रलाइजेशन शब्द का क्या मतलब है? ऑनलाइन ऑल्सो हाँ, कंसंट्रेशन ऑफ द पावर लगा लो, पावर एक ही पास के पास रहेगी। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब हो जाता है जब पावर लोअर फ्रिंजेस के ऊपर चली जाती है। सेंट्रलाइजेशन मतलब एक ही जगह पे जब पावर इकट्ठी हो जाती है। दे इंट्रोड्यूस सेंट्रलाइजेशन। इससे पहले वहां पे क्या होता था? देयर वाज अ फ्रेंच पार्लियामेंट दैट वाज एग्जिस्टिंग। यहां पे ई ही है, आई नहीं आता। फ्रेंच पार्लियामेंट दैट वाज एग्जिस्टिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड दिस वाज बेसिकली हैविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैरिंग ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड इम्पोजिंग वेरियस टैक्सेस ऑल्सो। इसकी जिम्मेवारी क्या थी? टैक्सेस इंपोज करना है, जो भी और काम करना है। यहां पे राजा भी था। दे इंट्रोड्यूस सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर। इससे पहले क्या होता था? व्हाट वाज गोइंग ऑन बेसिकली इन फ्रांस एट द टाइम ऑफ लुइस 13 के टाइम के पहले? किंग वाज देयर फॉर एग्जांपल, एंड द पावर वाज कैरिड ऑन बाय डिफरेंट फ्यूडल लॉर्ड्स एक्सेट्रा। वो पूरे का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का मैनेजमेंट करते थे। किंग को पूरे का पूरा इनडायरेक्ट कंट्रोल होता था। What happened was at the time of Louis XIII, there was, for example, gunpowder that was discovered, and this gunpowder was basically used for making firearms. हथियार बनाने के लिए गन पाउडर है। अब क्या था? These nobles who were there, जो राजे के नाम के ऊपर रूल कर रहे थे, their power decreased. What was there? They had the power. These nobles earlier, they were having the power and they were having the responsibility also. जब ऐसा समझ लो, they were having the privileges and they were having the responsibility also. What is privileges? Privilege शब्द का मतलब है किसी ना किसी benefits मिलेंगे एक्सेट्रा। यहाँ पे privileges का मतलब क्या हुआ? उनको खुद को टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, या और फैसिलिटीज मिलेंगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है? इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भी अपने अपने एरिया में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे एंड अपने अपने एरिया में रेवेन्यू भी कलेक्ट करेंगे। क्लियर है इतना? इनकी जिम्मेवारी क्या बनती है नोबल्स की जो वहां पे काम कर रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे और फॉर एग्जांपल रेवेन्यू भी कलेक्ट करके राज्य को डिपॉजिट करवा देंगे। दिस विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी। पावर क्या है इनकी? जब प्रिविलेजेस क्या है? दे विल नॉट बी पेइंग टैक्सेस। इनको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। व्हाट हैपन वाज, जैसे ही गन पाउडर इंट्रोड्यूस कर दिया तो राजे को लगा यार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए नोबल्स की जरूरत ही नहीं है। देयर इज नो नीड फॉर नोबल्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। अगर गन है हमारे पास, वी कैन हैव अवर ओन आर्मी। सेंट्रल आर्मी है, अपनी आर्मी को अलग अलग जगह पे वहां पे भेज दो एंड दे विल बी मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। इनको इतना बड़ा लैंड रेवेन्यू में से हिस्सा देने की क्या जरूरत है? अब फर्स्टली, बट दीज पीपल नोबल्स हु वर देयर, दे वर आल्सो सपोर्टर ऑफ द किंग। वो तो सपोर्टर होंगे, एकदम सारी इनसे पावर नहीं ले सकते। तो क्या हुआ? दो चीज है, एक तो प्रिविलेजेस है, एक है रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
their responsibility of maintaining law and order and their responsibility of collection and land revenue was taken away from them, and it was taken directly किसके पास आ गई? For example, king के पास आ गई, because centralization of power introduce होगी. But the privileges that were there, that continued. क्यों? राजे को भी अपने सपोर्ट के लिए लोग तो चाहिए अलग अलग जगह पे. जैसे फॉर एग्जांपल आजकल है, चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, इनके नेशनल प्रेसिडेंट है, इनका स्टेट प्रेसिडेंट है, इनका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, गली गली का प्रेसिडेंट भी है. क्यों? बिकॉज वहां पे अपनी सपोर्ट चाहिए जो आगे लोगों के साथ आपको कनेक्ट करके रखेंगे. सो देयरफॉर द प्रिविलेजेस दैट वर देयर, प्रिविलेजेस का मतलब कि they will not be paying the taxes. The privileges they continued, but their responsibility of collecting land revenue and for maintaining, for example, law and order was comparatively taken away from them. No, it was this power thing that was there. और ऐसा नहीं था कि ये फ्रांस में ऐसा हुआ था. दुनिया में जहां जहां पे राजे स्ट्रांग हुए उन्होंने सेंट्रलाइजेशन इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी. एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? ऑनलाइन ऑल्सो एनी प्रॉब्लम? हाँ, एब्सोल्यूट मोनार्की. एब्सोल्यूट मोनार्की शब्द का मतलब है कि पूरी की पूरी पावर राजे के हाथ में है, वो किसी के नहीं सुनेगा. उसकी मर्जी है किसी की सुनना, उसकी मर्जी किसी की नहीं सुनना. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब कॉन्स्टिट्यूशन आपकी पावर बता रहा है जी ये कर सकते हो, ये आप नहीं कर सकते हो. तो कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा है, जैसे यूके में है तो वहां पे राजे के पास कंप्लीट पावर नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो पावर दी थी उसका वही काम करना पड़ेगा. नहीं, नीड फॉर सेंट्रलाइजेशन की बात नहीं होती जो होती. एक सिंपल सी बात है, आपको एग्जांपल देता हूं मैं. किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर से आप पूछ लो, भाई तेरे पास काम कितना, ऑफिस में फ्री रहते हो कि बिजी हो? एवरी पर्सन विल से मेरे तो पूरा दिन काम रहता है जी, आई एम वेरी बिजी पर्सन, फ्रॉम 9 AM टू फॉर एग्जाम्पल 5 PM, मेरे को सांस लेने का टाइम नहीं मिलता. नॉर्मली दिस इज व्हाट एवरी ऑफिसर सेज दैट. ऐसे ही कहते हैं सभी लोग. फायर आर्म से पहले भी नहीं, आर्मी तो थी, अब आर्मी डायरेक्टली अपनी आर्मी ही कंट्रोल करेगी अर्शदेव. ठीक है, ठीक है. अब इनको बोलो कि अब कितना कितना, मैं तो बहुत बिजी हूं जी, कि मेरे डिपार्टमेंट का काम है, एक डिपार्टमेंट का काम है. अगर इसको बोलो यार तुम बिजी तो हो लेकिन 2 और डिपार्टमेंट में तुम्हारे काम में ऐड कर दें, वो बोलेगा कर दो. क्यों? बिकॉज इसके पास पावर आ रही है, एंड एवरीवन लव्स पावर. सेम इज द केस सेंट्रलाइजेशन के कंटेक्स्ट में क्या होता था कि करने की जरूरत क्यों होती है? बिकॉज एवरीवन वांट दैट पूरे के पूरे डिसीजन कंप्लीटली मेरे हाथ में ही हो और डिसीजन कहीं बाहर ना हो, इसलिए तो वो नीड नहीं होती. सेंट्रलाइजेशन खुद कर, जो राजा कैपेबल है वो सेंट्रलाइजेशन करता ही करता है. जैसे फॉर एग्जांपल अब कंपेरेटिवली जब मनमोहन सिंह का टाइम पीरियड था, द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर वाज नॉट दैट स्ट्रांग. मोदी के टाइम के ऊपर कंसंट्रेशन ऑफ पावर इज कंपैरेटिवली वेरी स्ट्रांग इनटू सिंगल हेड, और एक या दो लोग ही पूरा चला रहे हैं देश को. चलो, फर्स्टली देयरफॉर लुइस 13 he introduced centralization of the power, and that centralization of the power was comparatively good. He introduced centralization of power. जब centralization of power की बात है, one thing is for sure that it needs a capable person. ये तो श्योर है. सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भी कर दी, ऊपर से निकम्मा भी बंदा बिठा दिया, तो उसका क्या फायदा है? इट नीड्स अ कैपेबल पर्सन टू बिकम अ किंग. कि पूरे का पूरा सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कैपेबल पर्सन है, यू विल बी इन अ पोजीशन टू मैनेज इट, नो प्रॉब्लम. लुइस 13 और इसके बाद जो लुइस 14 गद्दी के ऊपर बैठा, बोथ ऑफ देम दे वर कंपैरेटिवली कैपेबल पर्सन. यहां से यहां जब सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का कोई भी नेगेटिव इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिला. बट लुइस 15 he was not that capable and he was extravagant ruler also. मीन्स फालतू खर्च करने वाला था. लुइस 16 ये बिल्कुल निकम्मा टाइप सा निकल गया. He was not in a position to take the decision on his own and he himself was under the influence of his wife Mary Antoinette. इसके इन्फ्लुएंस में था. He was not in a position to take his decision very easily and he was very much influenced by others also.
And therefore, at this point of time, the negative aspect of centralization of power, they started coming. अब पूरे का पूरा नेगेटिव एस्पेक्ट उसको कंपैरेटिवली देखने को लगे। जब राजा कैपेबल नहीं है, द नोबल्स दैट आर देयर who do not have any responsibility, but these nobles, they had all the powers, they start abusing or misusing their power for their own personal benefit. अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए ही पूरे के पूरे पावर ही यूज करने लगे। एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? We said that it was at this point of time that the nobles, they started misusing their power. For example, there is definitely administrator who would be required. किसी भी राज्य को काम करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन तो चाहिए, पॉलिटिकल सिस्टम तो चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स हायर ऑफिसर्स। In this administration, it was the monopoly of nobles that were there. जैसे अभी आईएएस का एग्जाम है, पहले क्या होता था कि फॉर एग्जांपल ये कोई अमीर इंसान है, उसके बच्चे को आईएएस बना दिया या उसके बच्चे को हेड बना दिया। मोनोपोली ऑफ द नोबल्स दैट वर बीइंग मेंटेन, कि अगर हाई ऑफिसर्स के जगह पे चाहिए, अगर गद्दी पे किसी को बिठाना है ऑफिसर्स की, अगर इस एरिया में से इस एरिया को चार्ज रखना है तो नोबल के बेटे को चार्ज बना दो। मीन्स ऑल द हाई ऑफिसर्स दे वर बेसिकली मोनोपोलाइज्ड बाय द नोबल्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो वहां पे कंपेरेटिव नेगेटिव इफेक्ट है। And this is what is called the monopoly of the higher officers by the administration by the nobles, is what is called the feudal values. बाप बेटा बेटा वैसे चलता रहेगा। This is what is called the feudal values. Therefore, the political system of that point of time was based upon the feudal values plus the feudal institutions. Means कोई competition नहीं है, सीधा बना दो। Feudal institutions that were they who were dominating at that point of time. And these people, nobles, they had a very high amount of privileges that were also there. पूरे का पूरा privileges थे। कहने का मतलब अगर एडमिनिस्ट्रेशन के कंटेक्स्ट में है, it was highly corruption that was prevailing administration में। Not only in this, the judiciary and the rule of law was also not followed. Judiciary had also become corrupt, and rule of law was also not followed. इसका मतलब क्या है? There was a concept of called letter de cachet. अब ये क्या होता है? This is basically एक ऐसा होता था कि एक लेटर होगी थी, वो आप किसी को भी कोर्ट में पैसे देके लेटर परचेज कर सकते हो। खाली है लेटर, भी ये किसी बंदे को जेल में डालना है, उसके बाद खुद उसके ऊपर नाम, जिसका नाम लिखना चाहो लिख लो, और फॉर एग्जांपल उसको पुलिस को दे दो और पुलिस उसको जेल में डाल देगी। लेटर डी कैचेट, जिसका मतलब क्या है कि आप किसी के भी खिलाफ एक अरेस्ट वारंट परचेज कर सकते हो, उसके बाद उस अरेस्ट वारंट के ऊपर उसका नाम लिख दो और वो अरेस्ट वारंट पुलिस को दे दो और पुलिस उसको उठा के जेल में डाल देगी। इसको क्या बोलते हैं? लेटर डी कैचेट। मींस द जुडिशरी हैड बिकम करप्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी। रूल ऑफ लॉ वॉज नॉट फॉलोड। रूल ऑफ लॉ का मतलब है लॉ हैज टू बी इक्वल फॉर एवरीवन। यहां पे क्या है? नोबल्स हैं, यहां पे है क्लर्जी, क्लर्जी शब्द का मतलब प्रीस्ट, एंड यहां पे है कॉमनर्स। These people are there at that point of time. अब इनके लिए लॉज अलग थे और इनके लिए फॉर एग्जाम्पल लॉज अलग थे। These people, they had nobles and clergy or noble priest, they had a very high amount of privileges, और यहाँ पे कोई privileges इनको नहीं मिल रही थी। There was a good amount of discrimination that was going on at that point of time, जिसकी वजह से political और administrative reasons की वजह से यहाँ पे problems थी। This is the first political cause that is there. नोबल मीन्स जो अमीर लोग होंगे, जो लैंडलॉर्ड होंगे, विदाउट प्रूफ कैचेट। मतलब दोबारा बोलो शिवम। हाँ, बिना प्रूफ के आप फॉर एग्जांपल एक आप उनसे अरेस्ट वारंट ले लो,
उस पर कुछ ना कुछ लिखा होगा, यहाँ पे उसका भाई ब्लैंक होगा, फिल इन द ब्लैंक आप लिख दो। फॉर एग्जांपल ये शिवम गुप्ता को उठा के जेल में डाल दिया जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और पुलिस वालों को दे दो और आप बेचारी जेल यात्रा हो जाएगी। ठीक है, ऐसे। अरे नहीं, ऐसे ही बता रहा हूँ ताकि समझ रहे, ताकि तुम्हें याद रह जाएगा। इज द फर्स्ट पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? पॉलिटिकल कॉजेस। The second is the social causes of the social life. When you talk about the French society, it was divided into privileged class and the unprivileged class. Privileged class में कौन थे? For example, nobles, और फॉर एग्जाम्पल क्लर्जी मीन्स प्रीस्ट। कॉमनर क्लास में फॉर एग्जाम्पल मिडिल क्लास, अनप्रिविलेज क्लास में मिडिल क्लास के लोग आ जाएंगे, या फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल वर्कर्स हो जाएंगे, लेबर क्लास, या फॉर एग्जाम्पल पीजेंट क्लास हो जाएंगे। दिस इज व्हाट इज बेसिकली कॉन्स्टिट्यूटिंग दिस। This clergy and nobles, they form the most important section at that point of time. जब क्लर्जी प्रीस्ट की बात करते हैं, इंडिया में भी देखते हैं हम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये सबसे ऊपर आ जाते हैं, और प्रीस्टली क्लास ने हमेशा अपना डोमिनेंस मेंटेन करने की कोशिश ही करी है। दिस क्लर्जी क्लास, इट वाज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 0.5% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस। फ्रांस की पॉपुलेशन का गिनती अगर इसकी करते सिर्फ 0.5% ही थी, बट दे हैड अ कंट्रोल ओवर मोर देन 15% ऑफ द रिसोर्सेज। पॉपुलेशन कितनी है? 0.5%। रिसोर्सेज कितने हैं? 15% इनके। नोबल्स की जब बात करते हैं, दे फॉर्म्ड अप्रोक्सीमेटली अबाउट 2% ऑफ द पॉपुलेशन एंड हैड अ कंट्रोल ओवर 20% of the wealth or the resources of the region of France। क्लियर है? ये 0.5% है, 0.5% पॉपुलेशन है, और कितने रिसोर्सेज है? 15%। इनकी 2% पॉपुलेशन है और रिसोर्सेज कितने? इट इज 20% रिसोर्सेज दैट इज देयर। दे फॉर्म्ड, क्लर्जी का मतलब प्रीस्ट बाबे हो गए ना, उनकी पॉपुलेशन 0.5% है और रिसोर्सेज उनके पास 15% है। They formed a class within a class. They formed a state within a state। भी एक जगह पे राजा है, राज्य के खिलाफ इनकी भी इक्वली पावर चलेगी। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसा लगा लो, ऐसा नहीं कि आज के कंटेक्स्ट में ही ये पूरे का पूरा काम हो रहा है। जैसे इंडिया में कुछ पावर्स रिलीजियस हेड्स के पास है, फ्रांस में भी ऐसी पावर बहुत बार आपको रिलीजियस हेड्स के हाथ में देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज द अनप्रिविलेज्ड क्लास। और फॉर एग्जाम्पल इनमें से ये पहला पॉइंट क्लियर है, फॉर ऑनलाइन ऑल्सो द फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। चलो, नेक्स्ट इज द अनप्रिविलेज्ड क्लास दैट वर देयर। दिस वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अब अनप्रिविलेज्ड क्लास की अगर पॉपुलेशन बात करते हैं, इट इज 97 to 98% ऑफ द पॉपुलेशन हो गई, और इनके पास रिसोर्सेज कितने हैं? जस्ट 65% ऑफ द रिसोर्सेज ही रह गया। 35% तो उधर चला गया, 65% इनके पास रिसोर्सेज रह गए। व्हाट इज दिस मिडिल क्लास? देखो, एक होता है बिल्कुल ही गरीब इंसान, एक होता है फॉर एग्जाम्पल मिडिल क्लास, बुर्जुआ क्लास, जो अमीर अभी गरीब मिडिल क्लास से निकल के ऊपर जाने लगे, चूंकि अपर मिडिल क्लास है। दीज वर द पीपल हु फॉर्म द बुर्जुअस क्लास, मीन्स अरिस्टोक्रेटिक अपर मिडिल क्लास लगा लो। एंड दिस डिड नॉट एंगेज इन फिजिकल लेबर। खुद काम नहीं करते थे लेकिन काम करवाते थे। कहने का मतलब क्या हुआ? छोटी मोटी इंडस्ट्री का मालिक हो गया या कैसे ऐसे करके दे वर नॉट एंगेजिंग इन फिजिकल लेबर, बट ऐसे करवाते थे। जब इनके पास बिकॉज ऑफ द रिसोर्सेज दैट वर दे वर हैविंग,
दिस मिडिल क्लास, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं अभी, दिस मिडिल क्लास हैड अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ द रिसोर्सेज, इनके पास काफी ज्यादा रिसोर्सेज भी थे। और बहुत बार तो ऐसा भी होता था ये स्टेट को पैसे ब्याज पे दे देते थे। जब लुइस 15 और लुइस 16 अपने पैसे इकट्ठे नहीं कर पाता था तो ये दोनों फॉर एग्जांपल किससे मांगते थे पैसे? मिडिल क्लास से, कि आप हमें पैसे दे दो, क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज काफी ज्यादा, और मिडिल क्लास में रिसोर्सेज कंपैरेटिवली काफी ज्यादा थे, डिस्पोजेबल है। अब क्या हुआ, अगर इनके पास रिसोर्सेज है बट क्या कि प्रिविलेजेस नहीं है। प्रिविलेजेस किसके पास है? नोबल्स के पास, या फॉर एग्जाम्पल क्लर्जी के पास पैसा है लेकिन आप हायर स्टेटस नहीं कर सकते, पैसा है लेकिन आप फॉर एग्जाम्पल आप टॉप लेवल ब्यूरोक्रेसी में नहीं जा सकते। एंड देयरफॉर दे हेटेड द प्रिविलेजेस ऑफ द अपर क्लास। प्रिविलेज क्लास की जो नोबल्स क्लर्जी थे उनकी प्रिविलेजेस को इफेक्ट, इनको प्रिविलेजेस को हेट करते थे कि सबका सब फ्रांस में काम तो हम करते हैं, पूरी का पूरा अपर क्लास को छोड़ के, या फॉर एग्जाम्पल ये डिसीजन मेकिंग एडमिनिस्ट्रेशन है, यहां वाला तो नोबल्स क्लर्जी हो जाएंगे, इसको छोड़ के पूरे का पूरा काम वो मिडिल क्लास ही देखती थी फ्रांस का। वो कहते हैं सब काम हम कर रहे हैं। बुर्जुआ मीन्स मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लिखा भी हुआ है ना, अपर मिडिल क्लास, पूरे का पूरा काम हम कर रहे हैं और प्रिविलेजेस हमें कुछ नहीं मिल रही हैं, तो देयरफॉर दे हेटेड द प्रिविलेजेस ऑफ द अपर क्लास दैट वर देयर, कि ये प्रिविलेजेस गलत है। देयरफॉर फर्स्टली ये एक मिडिल क्लास है। अगर आपने फैक्ट्री लगानी है या एडमिनिस्ट्रेशन का काम करना है, आप शहर में रह के काम करोगे या गांव में रह के? बताओ जी, शहर में होगी मिडिल क्लास के, गांव में होगा ये? शहरों में। इट वुड बी इन द सिटीज ऑल्सो। इफ इट वॉज इन द सिटी ओनली, नॉट इन द अर्बन एरियाज, तो सिटी में ही क्या थे? न्यू आइडियाज दे वर कमिंग अप, देयर वर डिफरेंट फिलोसफर्स दैट वर देयर। आगे भी हम करेंगे, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, they were propagating the ideas and they were saying that constitutional monarchy होनी चाहिए, they were saying rule of law होना चाहिए, they were saying separation of the power होना चाहिए, they were criticizing, for example the philosophers were criticizing the power of the church, and therefore automatically ये philosophers of middle class की आपस में आएगी, बनेगी। Therefore, this middle class was very much receptive to the ideas of the philosopher, and initially when the revolution took place, it was this middle class that played a very important role in the starting of the revolution also. Clear itna? Is it clear this much? मिडिल क्लास के बाद अनप्रिविलेज क्लास में आता है इंडस्ट्रियल वर्कर्स। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल वर्कर्स में जब आ जाता है तो आर्टिसंस हो गए, लेबर क्लास होगी, तो ये शहरों में होंगे कि गांव में होंगे? दीज पीपल विल ऑल्सो भी, हाँ जी नहीं, दीज पीपल, क्योंकि इंडस्ट्री अगर शहरों में है तो ये भी शहरों में होंगे। दीज पीपल वर इन द सिटीज। अब ये मिडिल क्लास के लिए काम कर रहे हैं, लेबर कर रहे हैं। मिडिल क्लास भी अगर अपनी बातें शेयर करती होगी, इनके साथ करती होगी, तो ऑटोमेटिकली ये शहरों में रह रहे हैं, शहरों में फिलोसफर्स अपने आइडियाज भी दे रहे हैं। They were definitely giving that. Therefore, these philosophers also influenced this industrial worker or the artisan and the labor class also. And these artisan and labor class were very much receptive to the ideas. Means they were accepting, they were receptive to the ideas of these French philosophers that were coming, and therefore they also participated in the revolt. जब initial phase में competitive revolt शुरू हुआ, कोई problem? Third is the peasant class. अगर पूरी पॉपुलेशन की बात करते हैं, peasant class formed approximately 80% of the population, and this was a class that was basically living in the rural areas. As they were living in the rural areas, philosophers के ideas के बारे में इनको for example कोई भी पता नहीं था. They did not participate. They formed the 80% of the population in the rural areas. It was they who were paying a very high amount of taxes also to the king. टैक्सेस भी कंपेरेटिव इनके ऊपर बहुत ज़्यादा थे, इम्पोज किए जा रहे थे. फॉर एग्जाम्पल कॉर्वी, फॉर एग्जाम्पल टिथस. ये कैसे? कॉर्वी शब्द का मतलब होता है फोर्स्ड लेबर. कभी ना कहीं इनको फॉर एग्जाम्पल फोर्स्ड लेबर भी करवाई जाती थी इनसे.
टेथस फॉर एग्जाम्पल, कोई भी चर्च किसी के ऊपर भी रिलीजियस टैक्स लगा देते थे कि नहीं जी आपको तो करना पड़ेगा. देयरफॉर दीज वर पेइंग अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ टैक्स. फर्स्टली ऑन द अदर हैंड they people were engaged into agriculture and agriculture were also comparatively backward. इंडस्ट्री भी बहुत ही कम डेवलप हुई थी, लेकिन एग्रीकल्चर भी कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे बैकवर्ड था, जिसकी वजह से कॉन्टिन्यूसली प्रॉब्लम थी. As these people were ignorant of the reformer program, therefore this class did not take participation when the revolt started. Clear to everyone? Is it clear for online also? कौन सा रिपीट कर रहा है निशांत? Peasant class were not in a position to, for example, to have a touch with these people of the philosophers. एक गांव में लोग रह रहे थे, philosophers के आइडियाज़ के साथ पता नहीं था, एग्रीकल्चर में इंगेज होते थे, मैक्सिमम टैक्स ये पे करते थे, जिसकी आइडियाज़ के लिए नहीं पता नए आइडियाज़ कौन से आ रहे हैं, रिवोल्ट की बात, रेवोल्यूशन की बात चल रही है, जिसकी वजह से इन्होंने रेवोल्यूशन में इनिशियल पार्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया. अभी ठीक है. फोर्स्ड लेबर इज नॉट अ काइंड ऑफ, थोड़ा बहुत स्लेवरी है. फोर्स्ड लेबर का मतलब क्या है कि आप महीने में 30 दिन है, 5 दिन आप हमारे फ्री काम करके जाओगे, इस तरीके से बोलते हैं. ये इंडिया में भी था, ऐसा नहीं कि यहाँ पे है, इंडिया में भी था. इज इट क्लियर नाउ एवरीवन? अभी बाद में मत जाओ, अभी इनिशियल फेज पे रहो, फिर कंफ्यूज हो जाओगे सभी लोग. मंजीद ए माउंटेन, हाँ बिल्कुल, बाबा शुरू से सुपीरियर रहते हैं. अरे ठीक है, इट इज द इंटेलेक्चुअल दैट इज सुपीरियर, इंटेलेक्ट दैट इज सुपीरियर. वो किसी के पास में हो, वो अपना दिमाग यूज कर सकता है. जैसे अभी एक ना मैं सीरीज देख रहा हूँ रंगबाज, देखिए. लाइफ नहीं जीते यार, बेलना हूँ, सभी क्या करें, ठीक है. तो आई वॉज वॉचिंग दिस सीरीज, तो वहाँ पे क्या होता है, देयर इज वन पर्सन, जिमी शेरगिल जो एक करेक्टर होता है, ही वांट टू बिकम IPS, इज गुड इन स्टडीज, लेकिन वो नहीं बन पाता, सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं. वहाँ पे ही बिकेम अ वाइन डीलर, शराब का ठेका दारी पूरे कर लग जाता है. प्लस देयर इज अ पर्सन जिसको फॉर एग्जांपल जो गुंडा टाइप सा होता है, रोहब वाला बंदा होता है, फॉर एग्जांपल एक और इसका दोस्त मिल जाता है. प्लस एक ऐसा बंदा मिल जाता है जिसको पूरे का पूरा पता होता है भी कहाँ से शराब आती है, कहाँ से नहीं आती. ये गुंडा होता है जो अपने ऑपोजिशन को दबाने की कोशिश करता है. ये वाला होता है वो कहाँ से सस्ती शराब मिलेगी वो काम करता है. और ये रंग जो वाइन डीलर होता है, जो पहले IPS बनना चाह रहा होता है, इसके पास दिमाग तो है. ही स्टार्टेड यूजिंग कि कैसे हम बेस्ट तरीके से इसको हम सोर्स आउट कर सकते हैं. तो यूज ऑफ ब्रेन आप कहाँ पे भी कर रहे हो वो ठीक है. इट इज देयर फॉर इंटेलेक्ट दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अब कहीं पे भी उसको यूज कर लो तो वो उसी हिसाब से होगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल बिन लादेन हो गया, मल्टीपल अदर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी दैट आर देयर. कभी सोचना इनका ऑरा कितना जबरदस्त है, लादेन का था. चलो, economic causes that are there becomes important. When you talk about the rulers that are there, Louis XIV, Louis XV, 14 extravagant थोड़ा बहुत था, 15 ज़्यादा हो गया, 16th निकम्मा निकल गया. Therefore, they were not in a position to manage the budget. बजट नहीं मैनेज कर पा रहे थे. देयरफॉर व्हाट दे वर सेइंग दैट नॉर्मली क्या होता है, अगर हम इंडिया का बजट भी बनाते हैं, पहले हम देखते हैं हमारे सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है.
इंडिया छोड़ो, आपके घर का है, फॉर एग्जाम्पल फादर की सैलरी है 50,000, आप उसके हिसाब से अपना खर्चा रखते हो, यार इतना करेंगे, फालतू नहीं करेंगे, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो 20 दिन के बाद। अगर आपके पास ये है, मतलब मीन्स यू हैव अ सोर्स ऑफ इनकम, आपके पास इनकम है, एंड अकॉर्डिंग टू द इनकम यू विल बी डूइंग योर एक्सपेंडिचर। ये सही तरीका है, बिल्कुल इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर इनकम कम है तो आपके एक्सपेंडिचर कम हो जाएंगे, इनकम ज़्यादा है तो आपके एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा हो सकते हैं। बट फ्रांस में उल्टा था, वो एक्सपेंडिचर पहले देखते थे अपना, चलो जितना एक्सपेंडिचर करना है कर लो, उतने ही हम लोगों के ऊपर टैक्स लगा देंगे, एंड वहां से फॉर एग्जांपल हमारी इनकम आ जाएगी। अगर फिर भी लगा कि इतने टैक्स नहीं लगा सकते, वी विल बोरो फ्रॉम द मिडिल क्लास। ये समझ आ गया इतना? इतना क्लियर है? ऑनलाइन ऑल्सो नॉर्मली क्या होना चाहिए, जितनी हमारी इनकम है उतना हमारा एक्सपेंडिचर होना चाहिए। फ्रांस में एक्सपेंडिचर देखते हुए ये भी कर लो, ये भी कर लो, उसके बाद उस लोगों के ऊपर टैक्स लगा दो, फिर भी पैसा कम कर रहे हैं तो किसी से ब्याज पे पैसे ले लो। किससे लेना? फॉर एग्जाम्पल मिडिल क्लास से लेना है। दिस वॉज वन थिंग दैट वॉज गोइंग ऑन। एक तो पहला द बजट वॉज नॉट, इस चीज को बोलते हैं फार्मिंग ऑफ द रेवेन्यू। हर जगह पे होता है, इंडिया में भी हुआ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वहीं पे हो रहा है। फार्मिंग ऑफ द रेवेन्यू, जिसका मतलब क्या होता है कि जो एक बोली लगा दो रेवेन्यू की, बताओ जी इस एरिया में मेरे को सबसे ज्यादा लैंड रेवेन्यू कौन कलेक्ट करके देगा, उसको बोलते हैं फार्मिंग ऑफ द रेवेन्यू या फार्मिंग ऑफ द टैक्सेस। दैट वाज व्हाट वाज फॉलोड, पहला। सेकंड थिंग, दैट ट्रेड एंड कॉमर्स वाज आल्सो नॉट डेवलप्ड। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन has also not taken place, and if has taken place it was very limited, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज डेवलप ही नहीं हो रही थी। ट्रेड एंड कॉमर्स वाज अफेक्टिंग बिकॉज देयर वर डिफरेंट टैक्सेस दैट वर देयर। फॉर एग्जांपल ये स्टेट है, पूरे का पूरा फ्रांस है, फ्रांस में अलग अलग नोबल्स है, यहाँ पे अलग है, ये बोलेगा 2% टैक्स मेरे को दो, ये बोलेगा 3% दो, ये बोलेगा 10% दो। There's no uniform taxation that was there. Industrial revolution has also not taken place. The agriculture was also backward. एग्रीकल्चर भी कंपेरेटिवली काफी बैकवर्ड था, जिसकी वजह से कॉन्टिन्यूसली प्रॉब्लम ही चल रही थी। नो एडवांसमेंट इन एग्रीकल्चर हैज टेकन प्लेस। अनदर प्रॉब्लम वाज द गिल्ड सिस्टम। दैट वाज वन ऑफ द वर्स्ट फीचर। गिल्ड शब्द का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मर्चेंट्स। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। बुरा किस तरीके से है? कुछ लोगों ने तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना ली, 10 लोगों ने, लेकिन 11th दे 10 लोग हैं, 11वें लोग या 12वें लोग को अंदर नहीं आने देते थे। देयरफॉर दे हैड मेंटेन अ सॉर्ट ऑफ मोनोपोली कि हम ही यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, हमको छोड़ के फॉर एग्जांपल कोई भी यहाँ ट्रेड नहीं कर सकता। देयरफॉर द न्यू पीपल वाज नॉट अलाउड टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। दिस वाज अ प्रॉब्लम। इसके साथ चलते हुए द पार्टिसिपेशन इन अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, बिकॉज इंग्लैंड ने इनको कनाडा में हरा दिया था, देयरफॉर दे नाउ नीडेड टू पार्टिसिपेट ओवर देयर आल्सो। इनको दे ऑफर्ड हेल्प टू अमेरिका, तो वहां पे भी पैसे तो लगे होंगे, एंड देयरफॉर पैसे पहले खुद ही पास नहीं थे, एंड यहाँ पे एक्सपेंडिचर कंपेरेटिवली आपको और ज्यादा हो गया। ये सब कुछ तामझाम चल रहा था। फॉर एग्जाम्पल 1780s में मल्टीपल नेचुरल कैलेमिटीज आल्सो स्टार्टेड टेकिंग प्लेस। फॉर एग्जाम्पल फ्लड्स आने लगे कहीं ना कहीं पे। जब फ्लड्स आने लगे, द पीपल वर नॉट इन अ पोजीशन, फॉर एग्जांपल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, कि कुछ भी फॉर एग्जांपल अपना एग्रीकल्चर कर सके, दैट अफेक्टेड। कहीं पे फ्लड्स है, कहीं पे ड्रॉट्स है। फ्लड्स एंड ड्रॉट्स हैड स्टार्टेड कमिंग बिकॉज ऑफ विच इंडस्ट्रीज पहले ही बैकवर्ड था, एग्रीकल्चर और इफेक्ट हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज्यादा उस टाइम पे फ्रांस में फैली हुई थी। इस टाइम के ऊपर द फ्रेंच किंग, फ्रांस किंग लुइस 16 वाज नॉट इन अ पोजीशन टू कलेक्ट एनी मनी। देयरफॉर अब पैसा ही नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है। 1786 में, 87 में अब टैक्सेस तो लगा नहीं सकते, तो क्या होगा? लोन कर सकते हो, बोरो कर सकते हो। ही ट्राई टू बोरो
फ्रॉम मिडिल क्लास, मिडिल क्लास से। बट मिडिल क्लास ने क्या किया? इट रिफ्यूज्ड टू गिव। मिडिल क्लास ने बोलते राजा को हम पैसे नहीं देंगे। क्यों? बिकॉज इट न्यू इट वेरी क्लियरली कि राजा रीपे नहीं करेगा जिस तरीके से बुरा हालत हो रही है। एंड देयरफॉर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दिस क्राइसिस डेवलप, जो बाद में रेवोल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किया। इज इट क्लियर दिस मच फॉर ऑनलाइन ऑल्सो? है हाँ, फिर दोनों ड्राउट एंड फेमिन दोनों स्टार्ट टेकिंग प्लेस। Next is the religious causes. Religious causes. अगर यहां पे है रोमन कैथोलिज्म was the important religion, was the main religion at that particular point of time. And religion करेंगे तो फॉर एग्जाम्पल क्लर्जी आएगा, बाबा आएगा। अब क्लर्जी भी दो तरीके से डिवाइडेड थे, एक है हायर क्लर्जी, एक है फॉर एग्जाम्पल लोअर क्लर्जी। हायर क्लर्जी हैड ऑल द प्रिविलेजेस, मीन्स आपके पास प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, पर आप कुछ भी काम नहीं कर रहे हो, टैक्स नहीं पे कर रहे हो, कुछ भी। लोअर क्लर्जी हैड नो प्रिविलेजेस एंड ऑल ड्यूटीज। जितने भी चर्च के काम करने हैं इन्होंने करने हैं, बट ये पूरी की पूरी ऐश वाला काम ये करेंगे। These things were going on at that particular point of time. They were committed and they were honest, and these people were comparatively corrupt. Therefore, this lower clergy hated the privileges of the higher clergy. जिसकी वजह से जब रेवोल्यूशन हुआ, दिस क्लास इट पार्टिसिपेटेड, बिकॉज इनको क्या लगने लगा कि अगर हम जीत जाएंगे रिवोल्ट में तो इनको फॉर प्रिविलेजेस हम खत्म कर देंगे। देयरफॉर द रिलीजियस कॉज आल्सो प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नेक्स्ट, अनदर इज द रोल ऑफ द फिलोसफर्स। philosophers. When you talk about the role of philosopher, what was the role of philosopher? किस तरीके से क्या था? When you talk about France, French Revolution originated from a combination of material misery, मतलब इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही बुरे हो चुके थे, प्लस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। देखिए नोट्स अपलोड हो गए ना ये, प्लस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और इंटेलेक्चुअल मूवमेंट दैट वाज देयर। इट वाज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ दिस। मटेरियल माइजरी हम ऑलरेडी कर चुके हैं इन द कंटेक्स्ट की पॉलिटिक्स प्लस एडमिनिस्ट्रेशन वाज इन अ वर्स्ट फेज, इकोनॉमिक कंडीशन वाज आल्सो गेटिंग अफेक्टेड। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? एक होता है फॉर एग्जांपल देयर इज सर्टेन सर्कमस्टांसेस दैट आर देयर, आप उसमें रह रहे हो और रहने की आदत पड़ गई है। दूसरे साथ इज ऑल्टरनेटिव, जब लोग आपको बता देते हैं कि यार ये सर्कमस्टांसेस क्यों रह रहे हो, वाई आर यू नॉट इन अ पोजिशन टू चैलेंज दिस, आपको लोग बताते हैं कि यार इसका ऑल्टरनेटिव भी हो सकता है। देयरफॉर देयर वर वेरियस इंटेलेक्चुअल मूवमेंट दैट वर गोइंग ऑन इन फ्रांस एंड देयर वर सर्टेन इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल्स हु वर देयर, फॉर एग्जांपल मोंटेस्क्यू, Voltaire, Rousseau. They started attacking the privileges of the church. They started attacking the privileges of the king. It was at this point of time that reason became the most important aspect and man became the center of their thinking. Reason means, they were saying, political में, the king was having a divine power. कहते राजा के पास दैवी शक्तियां हैं जिसकी वजह से राजा रूल कर रहा है। कहता बताओ जी, दिखाओ कहां पे दैवी शक्तियां हैं। कहता इतना बड़ा निकम्मा है राजा और आप दैवी शक्तियों की बात कर रहे हो। दे स्टार्टेड रीजनिंग एवरीथिंग। रीजन इट बिकेम अ मीडियम ऑफ देयर टेस्ट, कि बताओ जी कहां पे है। चर्च के पास, प्रीस्ट के पास दैवी शक्तियां हैं,
तो वहां पे है क्या, अगर वहां पे है तो बताओ जी, दिखाओ कहां पे बाबे के पास शक्तियां हैं। एवरीथिंग दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग। मोंटेस्क्यू ने क्या बोला कि एब्सोल्यूट पावर इज कंपैरेटिवली रॉन्ग, देयरफॉर ही क्रिटिसाइज्ड द एब्सोल्यूट मोनार्की दैट वाज देयर एंड सेड दैट एब्सोल्यूट मोनार्की नहीं होनी चाहिए, इसकी जगह पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कंपैरेटिवली होनी चाहिए। Not only he said that we need to follow the rule of law and separation of power has also to be there. So what he was saying that they played a very important role and attacked the divine right of king, recommended an alternative and the separation of power also. Voltaire, he criticized the चर्च का बुरा क्रिटिसिज्म किया इन द कंटेक्स्ट दैट कि हम कंसेप्ट ऑफ रीजन को करते हैं, जो सुपरस्टिशन चर्च की तरफ से चलाए जा रहे हैं हम कंपैरेटिवली उनको नहीं मानते। बट ही डिड नॉट ऑफर एन अल्टरनेटिव, पर इसने कोई अल्टरनेटिव नहीं दिया। रूसो, ही गिव अ थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड सेड दैट मैन ऑल्दो ही इज बॉर्न फ्री इज एवरीवेयर इन द चेन। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? Earlier what happened was that when there was coils that were going on, बहुत सारे लोगों ने क्या किया, जब पूरी हफड़ा दफड़ी मची हुई थी तो क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने अपने में से एक स्ट्रॉन्ग बंदे को बोला कि तुम हमारे किंग बन जाओ और जो भी तुम बोलोगे हम कंपैरेटिवली वो सब लोग तुम्हारी बात मानेंगे, प्रोवाइडेड तुम हमारे मुताबिक ही रूल करोगे। लेकिन अगर तुम हमारे अगेंस्ट जाके रूल करने लगे तो इसको बोलते हैं कलेक्टिव डिस्पोटिज्म, रूसो की टर्म में कलेक्टिव डिस्पोटिज्म। जहां क्या बुलाया जाता है? कलेक्टिव विल, जो आपको बाद में भी करवाया जाएगा। इसको क्या बोलते हैं कि राजे के पास पावर है, लेकिन राजा अगर इन सबके खिलाफ चला जाएगा, इन लोगों के खिलाफ चला जाएगा, तो कलेक्टिवली इनके पास पावर है राजे को गद्दी से हटाने की। इसको बोलते हैं कलेक्टिव विल दैट वाज देयर। विल का मतलब है लोग, कलेक्टिव पावर है लोगों के पास, इस राज्य को गद्दी से हटा सकते हैं। तो ये किसने बोला? सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी किसने दी? रूसो ने। ही पुट फॉरवर्ड दिस थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड फोकस्ड अपॉन इंडिविजुअल लिबर्टी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, and therefore say that man, although he is born free, is in chain because of various rules and useless rules and regulation that was basically followed and implemented that point of time. उसको जनरल विल भी बोला जाता है, हाँ बिल्कुल, कलेक्टिव विल, जनरल विल, कलेक्टिव डिस्पोटिज्म उसको कंपैरेटिवली बोला जाता है। तो therefore रोल ऑफ द फिलोसफर्स, अब लोगों को जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखो नुक्कड़ नाटक होते हैं या कुछ और होता है, व्हाट दीज पीपल वर डूइंग दैट दे वर डूइंग द क्रिटिसिज्म एंड कंपैरिजन आल्सो। क्रिटिसाइज भी कर रहे थे और कंपेयर भी कर रहे थे कि उनका राजा अच्छा है बिकॉज ऑफ दीज रीजन, हमारा राजा फॉर एग्जाम्पल बुरा है। दे वर डूइंग द सटायर एंड ह्यूमर, मीन्स मजाक मजाक में सब बात कह देना और बहुत बुरी तरीके से मत कहना, मजाक मजाक में फॉर एग्जाम्पल सब कुछ कह देना। एंड दे वर वाइल डूइंग दीज थिंग्स दे वर चर्निंग द डिसकंटेंट ऑफ सोसाइटी, जो लोगों के माइंड में था वो बाहर दिखा रहे थे। डिसकंटेंटमेंट ऑफ सोसाइटी, भाई आप अपने मन में मंदिर मानते हो कि ये गलत है लेकिन वो बाहर नहीं लेके आ रहे हो, तो क्रिटिसिज्म एंड कंपैरिजन से इन्होंने रोल प्ले किया। तो एक क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है, व्हाट इज द रोल ऑफ फिलोसफर इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन, और अगर ये फिलोसफर्स नहीं होते तो क्या फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं होता? दिस इज द नॉर्मल क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन यूपीएससी। हाँ जी, आपके मुताबिक क्या है जी? अगर फिलोसफर्स नहीं होते तो क्या रिवोल्ट नहीं होना, रेवोल्यूशन नहीं होना था? है नहीं होता। हाँ, वॉल्टेयर ने चर्च को क्रिटिसाइज किया, चर्च को, कि चर्च के पास एब्सोल्यूट पावर गलत है, वो सही नहीं है, रीजन को फोकस किया। Now what is the case is revolution took place in 1789 and it was the intellectual people who played a very important role, but intellectual is just for example an ignition या immediate cause लगा लो, पर social, economic, political, religious causes were already there. What these intellectuals they did that the philosophers they brought the days of revolution nearer.
वो पास में लेकर आ गए और जल्दी हो गया। रेवोल्यूशन वुड हैव टेकन प्लेस, अगर फिलोसफर्स इंटेलेक्चुअल्स नहीं होते तो भी रेवोल्यूशन हो ही जाना था, इफ नॉट इन 1789 और 10 साल 15 साल के बाद। व्हाट देयर रोल वाज दैट दे प्लेड अ रोल ऑफ एन इग्निशन, दे ब्रॉट द डेज ऑफ द रेवोल्यूशन क्लियर, the social, economic, political, religious conditions that were there had brought France to such a level that definitely आने वाले टाइम में for revolution हो ही जाना था। हाँ, इन्होंने क्या किया, philosophers ने क्या किया, they brought the days of the revolution comparatively nearer. That's it. Is it clear to everyone? Churning means पूरा जैसे मक्खन बनाते हैं पूरे का पूरा हिला के रख देना। They're basically working as the catalyst at that particular point of time. हाँ, फिलोसफर्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। नहीं कर, हाँ फिलोसफर्स ने क्या किया, दे प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्यों? बिकॉज दे ब्रॉट द डेज ऑफ द रेवोल्यूशन कंपेरेटिवली नियर, थोड़ा जल्दी हो गया, नहीं तो लेट हो जाना था। हाँ जी, इसको एक बार जितना पढ़ा है वो रिवाइज करो, टेक 5 minutes एंड रिवाइज इट। हाँ, तभी तो मैं बताया था ना, पार्टिसिपेशन इन द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और जब वो लोग वापस आए तो उनको लगा कि जिस बातों के लिए हम लड़कर आ रहे हैं और वही बातें हमारी कंट्री में इम्प्लीमेंट नहीं है। इतना तो पता नहीं राहुल मेरे को टेक्निकल का तो यार। हाँ राहुल, क्या क्वेश्चन था आपका? तो बस मतलब अरे उसकी वाइफ का नाम मैरी था। हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड डायरेक्टली। अरे नहीं, कहने का मतलब वो नहीं, जब पॉलिटिक कराएंगे तो उस तरीके से आपको करवाएंगे। तो यहाँ कहने का मतलब क्या था कि पीपल इट वुड बी, दे वुड बी इलेक्टिंग। आज भी जैसे होता है, डायरेक्टली ओबामा के लिए वोट थोड़ा डलेगी। फॉर हाँ, मेजर इकोनॉमिक नहीं, इकोनॉमिक वाज देयर अर्शदेव, सोशल वाज देयर, पोलिटिकल वाज देयर, एडमिनिस्ट्रेटिव वाज देयर, रिलीजियस वाज देयर। फार्मिंग ऑफ रेवेन्यू का मतलब होता है बोली लगा देने, भी जो हाईएस्ट रेवेन्यू पे कर देगा हम उसको दे देंगे। तो के टाइम नोबल्स का क्या मतलब, गेट ऑन, दोबारा पूछो। नोबल्स बेचारे, दे वर हैविंग ओनली द प्रिविलेजेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर नॉट देयर।
नहीं नहीं, है वो वैसे ही, कहने का मतलब क्या था कि इलेक्शन वैसे होगा, वो कोई इशू नहीं है। वो यहाँ पे गिल्ड का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स, डीजनरेटेड का मतलब करप्शन, करप्ट हो चुके थे। इकोनॉमिक कॉस्मिक, इकोनॉमिक कॉस्मिक देखो आपको कराया ना, पहला तो टैक्सेस सिस्टम, द टैक्सेशन सिस्टम वाज नॉट करेक्ट, दैट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। Industrial revolution has not taken place. Farming of the revenue was there. The rulers were extravagant. Agriculture was backward. Guild system was affected. System of budget was not there. Peasant में आपको बोला था कि फॉर एग्जाम्पल इट वाज दे हु वर पेइंग मेजर ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द टैक्सेस, टिथल्स, फ्यूडल ड्यूज काम कर रहे थे। इनको रिफॉर्मर्स की आइडियाज़ के बारे में कुछ नहीं पता था, बट देयर फॉर दे वर नॉट, दे डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द रिवोल्ट। कितने टॉपिक्स हैं वर्ल्ड, टॉपिक तो जो भी सिलेबस का पार्ट है वो करेंगे। हम एवरी क्लास विल बी ऑन ऑफलाइन ओनली, जस्ट जो जो ऑफलाइन आना चाहते हो आ जाओ। जीएस और जो आंसर राइटिंग वाली क्लास है वो ऑनलाइन ही रहेगी। Voltaire just criticized but not gave any idea. He criticized but did not give any alternative कि इसका solution क्या है जी। हाल तो कुछ नहीं शाश्वत, वन स्टूडेंट इज देयर, नीलेश आया हुआ है, एक लास्ट टाइम आए थे तो वो अकेले अकेले बोर हो जाती हैं। आ जाओ सभी लोग आ जाओ यार, अब तो कितना टाइम घर पे बैठ के पढ़ोगे। एक एक करते जाओगे तो सभी लोग इकट्ठे हो जाओगे हफ्ते में। नहीं नहीं वो ठीक है, नहीं अब नहीं, यहाँ पे ज़्यादा बढ़िया रहता है ना ऑफलाइन में। नहीं वो ऑफलाइन तो भी ऑफलाइन ही होता है, ऑफलाइन इज ऑलवेज बेटर। हाँ जी आ जाओ, कल आ जाओ। अमरावती में नहीं होगा जी, अमरावती तो अगले साल जाएगा, अमरावती पुणे नेक्स्ट ईयर। टी टायरनी, टायरनी मीन्स किसी को दुख तकलीफ देना, जब प्रॉब्लम क्रिएट करना। करंट अफेयर के क्वेश्चंस दिए थे ना सर, कहाँ सबमिट करना है? कौन से क्वेश्चन अर्श? मोहित सर ने दिए थे जो, वो यहीं पे भेज दो तो फिर वो सम सर को फॉरवर्ड कर देंगे। बस सर भी आ ही जाएंगे कुछ दिनों में, यहीं पे दिल्ली आ जाएंगे। Come and try to manage income as per expenditures allotted। मतलब कि एक्सपेंडिचर जितना भी कर लो, ठीक है, एक्सपेंडिचर जितना भी कर लो उसके बाद फिर लोगों की, अगर आपको लगता है कि यार ज़्यादा एक्सपेंडिचर है, देन इम्पोज मोर टैक्सेस ऑन द पीपल, उससे पैसा जो कम है वो पूरा कर लो। अगर फिर भी पैसा पूरा नहीं हो रहा है तो बोरो फ्रॉम द मिडिल क्लास, उस वजह से अपना एक्सपेंडिचर चलाओ।
हाँ जी कर दो वहाँ पे लिख देना मोहित सर ने दिया हुआ ये, तो हम जो टीम है मोहित सर को फॉरवर्ड कर देगी, नहीं तो यहीं पे रह जाएगा। चलो नेक्स्ट इज the social, the political conditions, the administrative conditions, the religious conditions, the for example the economic conditions etc. were same in almost all of Europe. जब पूरे के पूरे यूरोप में सेम ही है तो सिर्फ फ्रांस में ही रेवोल्यूशन क्यों हुआ? भी और कहाँ पे रेवोल्यूशन या रिवोल्ट क्यों नहीं हुआ, सिर्फ फ्रांस में क्यों हुआ? दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हुआ? गिव मी सर नंबर प्लीज। और नंबर तो आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा है ना गुड्डू, जो 9910133084 जो स्क्रीन पे आ रहा है उसी पे करना है। अरे हम पुराने ट्रेंड वाले लोग हैं, एक ही नंबर हमसे मुश्किल से संभाला जाता है। वो आजकल की नई जनरेशन है, 2-3 लोगों से बात करनी होती है, फिर पता ना लग जाए किसी को, इसलिए मल्टीपल नंबर रखते हैं। चलो तो डबल सिम वाले फोन पता नहीं क्या क्या होता है। चलो there is nothing wrong in that also, पर आपने अपनी अपनी सोच है। Why revolution took place only in France? देखो political, economic, religious, social, cultural, whatever you talk about, पर condition हर जगह पे सेम है। But on the other hand, वो फ्रांस में बहुत ही ज़्यादा निकम्मे लोग आ चुके थे। Monarchy was there, it was absolute monarchy everywhere, but absolute monarchy के साथ राजा भी तो ठीक हो। The monarchy was weak, it was the weakest in France। हर जगह पे फॉर एग्जाम्पल मोनार्की ही है, अगर एब्सोल्यूट मोनार्की कहीं पे है वहां पे स्ट्रांग है, लेकिन कहीं पे वीक है तो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे वीक में से सबसे वीक फॉर एग्जाम्पल फ्रांस में आ चुका था। दैट वाज कॉन्टिन्यूसली क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। द फ्यूडल सिस्टम हैज डिग्रेडेड। दूसरी कंट्रीज में क्या था कि फ्यूडल लॉर्ड जो नोबल थे, इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी और इनके पास फॉर एग्जाम्पल पावर भी थी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इनके पास रही नहीं, सिर्फ पावर ही रहेगी। Therefore, the feudal system has degraded to a great extent, and the same level of degradation has not taken place in other parts of the country. Discovery of gunpowder, that was used to a great extent, because of which that demanded a centralization of the power and a strong king, but the king was comparatively very weak in France, जिसकी वजह से continuously problem है। The participation in the American War of Independence, France was the main country which wanted that this British should be defeated, Britain। इसने अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में अमेरिका को सपोर्ट किया इंग्लैंड के खिलाफ, तो वहां पे पैसा लगा। सेम लेवल ऑफ सपोर्ट इन फाइनेंशियल एंड अदर टर्म्स फॉर नॉट बीइंग प्रोवाइडेड बाय अदर कंट्री, जिसकी वजह से फ्रांस में कंपेरेटिवली और ज्यादा क्राइसिस होगी। देन सोल्जर्स ऑफ फ्रांस, they went to US to support US। when they returned, जब वापस भी तो आएंगे, they returned, they thought that यार हम जब US में थे, हम रूल ऑफ लॉ, हम लिबर्टी, हम इक्वलिटी एक्सेट्रा के लिए अपनी जान गंवाने के लिए वहां पे गए थे, लेकिन जब फ्रांस में तो सेम चीज है ही नहीं है। अगर हम दूसरे देश में वहां पे जाके लड़ सकते हैं उनके लिए, तो अपने देश में क्यों नहीं लड़ सकते? Therefore, this awareness of the soldier to the level of the people of France that were in the soldiers did not exist for other people also, on the one hand। On the other hand, the privileges and the unprivileged class, जितना differences social status में in the context of immense wealth, very high amount of wealth and very high amount of poverty। बहुत लोग, कुछ लोग थे बहुत अमीर थे, जैसे आपको बताया था 5.5% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ क्लर्जी हैड 15% ऑफ दी, और यहाँ पे क्या है फॉर एग्जाम्पल पॉवर्टी, फॉर एग्जाम्पल 80% ऑफ द पीजेंट्स हु वर देयर पॉपुलेशन में, मैक्सिमम टैक्सेस इट वाज दे हु वर पेइंग, जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। नहीं, अनदर दीज पीजेंट्स हु वर देयर विद द पैसेज ऑफ टाइम दे आल्सो बिकम विजिलेंट। These peasants,
These people they used to pay taxes to the nobles, और नोबल्स आगे फॉर एग्जाम्पल किंग को दे देते थे. नाउ दीज पीजेंट्स स्टार्टेड थिंकिंग कि ये तो कुछ काम ही नहीं कर रहा, हम डायरेक्टली राजा को क्यों ना टैक्स दे दें. Therefore, these vigilant peasants that were there, जिस तरीके से अवेयरनेस थोड़ा बहुत आने लगा था वो कहीं और पे कंपेरेटिव नहीं थे. And most importantly, the role of the philosophers that were there. The philosophers, for example, by their criticism and comparisons, जिसकी वजह से क्या हुआ कि सोसाइटी में एक अवेयरनेस क्रिएट कर गई, जिसकी वजह से इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट स्टार्टेड टेकिंग प्लेस, जिसकी वजह से फ्रांस में रेवोल्यूशन आ गया था. कैसे डेवलपमेंट? फॉर एग्जाम्पल नेशन वाइड ओपिनियन, कि पूरे का पूरा देश ही चाह रहा है कि क्रिटिसिज्म और कंपैरिजन के साथ जो किया हुआ है एब्सोल्यूट मोनार्की खत्म करके कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की किया जाए, चर्च की पावर को कंट्रोल किया जाए. नेशन वाइड ओपिनियन स्टार्टेड टेकिंग प्लेस, इसकी वजह से नेशन वाइड मूवमेंट शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से अब बोल रहे थे वी नीड टू हैव अ नेशन वाइड पॉलिसी ऑल्सो. Same level of intellectual awareness and other conditions were not existing in other parts of Europe, जिसकी वजह से क्या हुआ था, it was this revolt that took place only in Europe, not in only in France and not in other parts of the. Is it clear to everyone? No, this is just the background कि जिसके context में हुआ, and next is the beginning of the revolution कि revolution शुरू हुआ. अभी तक एक बार थोड़ा सा जल्दी से नोट्स पढ़ो अपने 2 मिनट लगा के, अगर कुछ डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर इसको कंटिन्यू करते हैं. यहाँ पे एक बार पढ़ो अच्छे से. नोट्स दैट हैज़ बीन गिवन टू यू गुड्डू PDF फॉर्मेट में अपलोड है मटेरियल पार्ट में सेक्शन में. और मेरे को टेक्निकल नहीं पता होता यार. Peasants they were comparatively very aware and they started thinking कि जब nobles का कोई काम ही नहीं है तो हम nobles को taxes क्यों पे करें, सीधा राजे को ही दे देते हैं. Same level of awareness was not there in other countries. जब इमेंस मतलब बहुत ज़्यादा पैसा और दूसरी जगह पे गरीबी बिल्कुल. बिगिनिंग ऑफ द रेवोल्यूशन दैट टेक प्लेस. व्हेन यू टॉक अबाउट फ्रांस, इट वाज अ सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर दैट वाज देयर. दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लुइस 13 एंड हिज मिनिस्टर कार्डिनल रिचलियू. एंड इसके बाद जब इन्होंने सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर इंट्रोड्यूस कर दिया तो फ्रांस में पार्लियामेंट थी, फ्रेंच पार्लियामेंट. इसके 3 पार्ट होते थे. फॉर एग्जाम्पल 3 स्टेट जनरल्स होते थे. इट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ 3 स्टेट जनरल कि कौन कौन कंपेरेटिवली इसको डिसीजन लिया जाएगा. 3 जब स्टेट जनरल थे तो उनमें से 2 तो प्रिविलेज क्लास के हो गए, नोबल और क्लर्जी. तीसरा फॉर एग्जाम्पल होगा कॉमनर्स का. The strength of each state general was equal. For example, 100 इसका है, 100 इसका है और 100 मेंबर ही इसका है.
एंड इनके पास भी वोट, इनकी वोट भी 1 काउंट करी जाएगी, इनकी वोट भी 1 काउंट करी जाएगी और इसकी वोट भी 1 काउंट करी जाएगी. दिस बेसिकली वाज कमिंग फ्रॉम द प्रिविलेज क्लास. नोबल्स एंड क्लर्जी वाले ये लोग हो गए, एंड दिस वाज बेसिकली द कॉमनर्स. अब नॉर्मल सी बात है, ये इनकी 2 वोट होगी और इनकी 1 वोट होगी तो चलेगी इनकी ही. फ्रेंच पार्लियामेंट की जब कंपेरेटिवली बात करते हैं, 3 स्टेट जनरल का कंप्राइज करता था, 2 प्रिविलेज क्लास की होती थी, 1 कॉमनर्स की. तीनों की स्ट्रेंथ सेम थी, इनकी 1 वोट थी, इनकी 1 वोट थी, कलेक्टिवली इनकी 8 वोट है. डिसीजन बेसिकली आपका मेजोरिटी से लिया जाएगा भी कौन किसकी तरफ जाता है. दिस वाज सेक्शन. जब लुइस 13 राजा बना तो ये कन्वीनिंग ऑफ द फ्रेंच पार्लियामेंट को खत्म कर दी, कहता जरूरत नहीं है, पूरे के पूरे डिसीजन जो कंपेरेटिवली मैं खुद ही लूंगा. आई डू नॉट नीड एनी स्टेट जनरल टू असिस्ट मी. इसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर दैट वाज टेकिंग प्लेस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन फाइन, बट लुइस 16 के टाइम के ऊपर देयर वाज इकोनॉमिक क्राइसिस दैट स्टार्टेड डेवलपिंग, जो हमने किया हुआ है. जब ये इकोनॉमिक क्राइसिस वहां पे डेवलप हो गया, देयर वाज अ नीड दैट वी टू ओवरकम दिस क्राइसिस वी नीड टू इम्पोज टैक्सेस ऑन द पीपल. टैक्सेस किस पे आप लगा सकते थे? या तो फॉर एग्जांपल नोबल्स पहले थे, क्लर्जी थे और फॉर एग्जांपल कॉमनर्स थे. इनके ऊपर टैक्सेस वर ऑलरेडी बीइंग इम्पोज्ड. इनके पास पैसा बहुत था लेकिन दे वर नॉट पेइंग एनी टैक्सेस. इतना आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, नॉट पेइंग एनी टैक्सेस. अब क्या हुआ, जरूरी थी अगर इस इकोनॉमिक क्राइसिस से हमें बाहर आना है, अगर इस इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर आना है तो इसके इन दोनों क्लासेस के ऊपर टैक्स लगाना पड़ेगा. लेकिन टैक्स लगाना पड़ेगा, क्या ये कभी मानेंगे कि हमारे ऊपर टैक्स लगाओ? कभी नहीं मानेंगे. देयरफॉर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम लुइस 16 खुद इतना कैपेबल नहीं था, लेकिन ही अपॉइंटेड डिफरेंट मिनिस्टर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. फॉर एग्जांपल टर्गोट, नेकर, कैलोने एंड ब्राइनी. इसने अलग अलग अपना, ऐसा समझ लो इसने अलग अलग फाइनेंस मिनिस्टर्स अपनाए. ऑल दीज पीपल दे एडवाइज्ड लुइस 16 कि आप टैक्सेस लगाओ क्लर्जी और नोबल्स के ऊपर, तभी आप इस क्राइसिस से बाहर आ सकते हो. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम राजे ने ऑर्डर मान लिया. पहले इनको डिसमिस किया, बरने की थोड़ी बहुत ही बात मानी, और राजा भी इस बात को समझ गया कि बिना टैक्स लगाए कि काम नहीं चलेगा. देयरफॉर ही सेड दैट आज के बाद ये फॉर एग्जांपल ये दोनों क्लास टैक्सेस पे करेंगी. और फ्रेंच पार्लियामेंट को बोला, जो लुइस 13 के बाद कभी जुड़ी नहीं थी, इकट्ठी नहीं हुई थी, उसको इनडायरेक्टली बोला गया कि आप टैक्सेस रजिस्टर करो कि आप टैक्स लगा सकते हो. अब तो नोबल्स और क्लर्जी ने क्या असिस्ट किया राजा, इन्होंने क्या बोला, दे सेड टू लुइस 16 कि यू डू नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस. अगर टैक्स लगाने हैं तो उसका पावर फ्रांस की पार्लियामेंट के पास है. फ्रांस की पार्लियामेंट ही टैक्स लगा सकती है हमारे ऊपर, और वैसे नहीं लगा सकते. इसलिए कहा जाता है द रेवोल्यूशन वॉज स्टार्टेड बाई एरिस्टोक्रेसी, and it was against aristocracy also, aristocracy itself. इसका क्या मतलब, शुरू किसने किया था रेवोल्यूशन? एरिस्टोक्रेसी ने. इन्होंने क्या मना कर दिया कि हम टैक्स नहीं पे करेंगे. टैक्स नहीं पे करेंगे तो आपको फ्रेंच पार्लियामेंट बुलानी पड़ेगी, फ्रेंच पार्लियामेंट बुलानी पड़ेगी तो कुछ ना कुछ नेगेटिव होगा. इट वाज अगेंस्ट द एरिस्टोक्रेसी इटसेल्फ. अगेंस्ट एरिस्टोक्रेसी मतलब कि बाद में इनके ऊपर ही टैक्स लगाए जाएंगे. इन्होंने ही शुरू किया और इनके ही खिलाफ वो बात चली गई. इट वाज स्टार्टेड इन दिस वे. जब रेवोल्यूशन के इन्होंने क्या बोला कि यू डू नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्स, अगर टैक्स लगाने हैं तो फ्रेंच पार्लियामेंट के लिए है. देयरफॉर यू शुड बी कन्वीनिंग द फ्रेंच पार्लियामेंट. तो क्या करो, आप फ्रेंच पार्लियामेंट को बुलाओ दोबारा. फ्रेंच पार्लियामेंट में 3 स्टेट जनरल्स हैं. पहला फॉर एग्जांपल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इज बेसिकली द कॉमनर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. इतना क्लियर है? ऑनलाइन ऑल्सो. जब इन तीनों बुलाया गया स्टेट जनरल को, तीनों अलग अलग बैठे, एक नोबल्स है, क्लर्जीज है, एक तीसरा. दे फॉर एग्जांपल दे वर सिटिंग सेपरेटली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. अब एक सिंपल सी बात है, उसके हाथ में नहीं था ना, ही हिमसेल्फ वाज वीक किंग.
इसने एडवाइस कर दिया फॉर एग्जांपल टर्गोट ने कि आप टैक्सेस लगाओ किसके ऊपर, नोबल्स के ऊपर। ये लुइस 16 ने नोबल्स को बोला होगा कि आपके ऊपर टैक्स लगाएंगे, तो नोबल्स ने इसको भड़का दिया होगा कि कैसा बंदा रख रखा है हमारे ऊपर टैक्स लगा रहे हो, निकालो इसको। दिस हैपन एंड दैट हैपन फॉर एवरीवन। स्टेट जनरल के लिए फॉर एग्जांपल अलग अलग टाइम के ऊपर बनाया गया, इनको बुलाया गया। द सेशन बेसिकली स्टार्टेड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ऑन 5th May 1789 को सेशन क्या हुआ। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने पूछा कि आवर स्ट्रेंथ शुड बी डबल्ड, कि हमारी स्ट्रेंथ डबल कर दो। फॉर एग्जांपल थर्ड, इनकी स्ट्रेंथ है 100, इनकी स्ट्रेंथ है 100, इनकी स्ट्रेंथ है 100, इनके पास वोट एक है, इनके पास एक है, इनके पास एक है। इन्होंने क्या बोला कि हमेशा हमारे खिलाफ ही डिसीजन जाएगा, प्लीज डबल अवर स्ट्रेंथ। राजा कहता ठीक है, स्ट्रेंथ डबल कर दी लेकिन वोटिंग पावर तो एक ही रहेगी, फिर क्या फर्क रहेगा, डिसीजन फिर भी फॉर एग्जांपल इनकी सपोर्ट का ही होगा, इनकी कभी नहीं होगा। देयरफॉर इट वाज अ प्रॉब्लम दैट दीस पीपल आल्सो अंडरस्टूड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। देयरफॉर अब इन्होंने क्या बोला, पहले बोला कि हमारा डबल करो, जब ये बात हो गई देन दे सेड दैट नाउ ऑर्गेनाइज अ जॉइंट सिटिंग, कि एक अलग अलग बुलाओगे तो वोटिंग पावर तो 1-1 ही है, इनका मेजॉरिटी से डिसीजन ले लिया जाएगा। लेट अस हैव अ जॉइंट सिटिंग, इनका पूरी के पूरे 400 लोग बैठेंगे, 100 + 100 + 200, 400 लोगों में से जो डिसीजन होगा वो ले लिया जाएगा। लेट अस ऑर्गेनाइज अ जॉइंट सिटिंग एंड ये वोटिंग वाला सिंगल पावर कंपैरेटिवली खत्म कर दो। एंड जॉइंट सिटिंग के लिए ऑब्वियसली बात नहीं माननी थी। इस सब के चलते हुए 17 जून को, आपको डेट्स याद रखने की जरूरत नहीं है, जैसे समझाने के लिए है। 17 जून को क्या हुआ कि पार्लियामेंट के गेट ही बंद कर दिए, उनको बोला कि यू विल नॉट बी अलाउड टू कम इनटू द पार्लियामेंट, की ज्वाइंट सिटिंग की बात कर रहे हो, आपको हम अंदर ही नहीं आने देते, आप बाहर ही रहो। फर्स्ट थिंग दिस इज टेकिंग प्लेस। वहां पे क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, पार्लियामेंट के पास एक टेनिस कोर्ट था, दे वेंट इनटू द टेनिस कोर्ट और वहां पे जाके बैठ गए और क्या बोला कि हम अपने आप को फ्रेंच असेंबली मानते हैं, वी आर बेसिकली द फ्रांस नेशनल असेंबली। वो झूठे वाले लोग बैठे हैं, हम रियल वाले लोग हैं। एंड ऑन 20th जून दे टुक व्हाट इज कॉल्ड एज टेनिस कोर्ट ओथ। इन्होंने अपने आप को क्या बोल दिया, वी आर फ्रेंच नेशनल असेंबली, कि जो बाहर पार्लियामेंट वाले लोग हैं वो करप्ट हो चुके हैं, वी आर द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव। टेनिस कोर्ट, टेनिस यहाँ पे खेलते हैं उसको टेनिस कोर्ट ही तो बोलते हैं, ठीक है। वहां पे जाके इन्होंने कसम खा ली कि हम जब तक हमारा जॉइंट सेशन के लिए हमारी बात कंपेरेटिव नहीं मानी जाएगी तब तक हम फॉर एग्जांपल वहां पे नहीं बाहर निकलेंगे, तब तक वहीं पे बैठे रहेंगे। राजे को मजबूरी में 22 जून को प्रेशर में आते हुए ही उनकी बात माननी पड़ी कि चलो ठीक है, वहां पे आपकी बात कंपेरेटिवली मानते हैं, जिसकी वजह से फ्रेंच नेशनल असेंबली केम इनटू एग्जिस्टेंस। अब कंपेरेटिवली क्या हुआ, कॉमनर्स मतलब कि अब पूरे के 400 लोग इकट्ठे ही कंपेरेटिवली एक ही जगह पे बैठेंगे। द कॉमनर्स दैट वर देयर, आम लोग, हाँ कॉमनर्स ही तो बताए तो है अभी। द कॉमनर्स जब उनको एंटर नहीं करने दिया तो वहां पे जाके बैठ गए। नाउ 22 जून को यह अब 400 लोगों की एक नेशनल असेंबली बन गई। जैसे हमारा पार्लियामेंट है फॉर एग्जांपल, वैसे उनकी नेशनल असेंबली बन गई। एवरीथिंग वाज कंपैरेटिवली गोइंग ऑन फाइन, वहां से डिस्कशन सब कुछ, डिबेट सब कुछ चल रहा था। 14 जुलाई को एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई कि फ्रेंच फोर्सेस इट स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स पेरिस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। कुछ फोर्सेस थे वो पेरिस की तरफ वैसे ही मूव करने लगे थे। नाउ द सिचुएशन कंपैरेटिवली बिकेम वेरी वॉलेटाइल, हॉस्टाइल सिचुएशन हो गई थी। अब लोगों को जो वहां पे थे, कॉमनर्स थे, उनको लगा कि किंग्स लुइस 16 ने आर्मी बुलाई है हमें मारने के लिए, कि हम कंपैरेटिवली उसको हमें मार दिया जाएगा। इस चलते हुए किसी ने एक अफवाह उड़ा दी कि फोर्ट बेस्टिलस में वहां पे बहुत ज्यादा आर्म्स पड़े हैं।
अगर आप फोर्ट से, किले से, जो राज्य की इम्पेरेटिव मेन पावर है, वहां से आप अपने आप को बचाना है, तो यहां से हथियार लूट के ले आओ। दिस थिंग वॉज कंपेरेटिवली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट दैट टुक प्लेस। लोगों ने किले को तोड़ दिया, वहां से जो मिला वो उठा के ले आए एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे ही किला तोड़ दिया गया, आप ऐसा लगा लो कि अब एक बात तो श्योर है कि राजा की पावर खत्म हो चुकी है, राजा अपने आप को भी बचाने के लिए लायक नहीं बचा हुआ है। When this development took place, the fort walls were basically broken. राजे को भी लगा कि मूवमेंट ऑफ द आर्मी बड़ा गलत स्टेप है। Therefore, he asked the army कि आर्मी शुड बी रिटर्निंग बैक, कि आप पेरिस से वापस चले जाओ और बैरक्स में चले जाओगे, आप अपने अपनी जगह पे चले जाओगे, नो नीड टू कम इन टू पेरिस। और वहाँ से कंपेरेटिवली पूरे का पूरा फोर्ट डिस्ट्रॉय हो गया। एंड जब बैरक्स में चले गए, नेशनल असेंबली दोबारा से वो काम करने लग गई। इज इट क्लियर एवरीवन? तो ठीक है। When everything was going on fine, नेशनल असेंबली की तरह काम कर रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई बेसिकली ऑन 4th of August। A person by the name Mirabeau, he was a noble। जब सब कुछ चल रहा था, he got up from his seat, और इमोशनल होने के बाद क्या बोला कि मैं अपने पूरे के पूरे प्रिविलेजेस छोड़ता हूं, आज के बाद मैं कोई भी प्रिविलेजेस एक्सरसाइज नहीं करूंगा, मैं कोई भी पावर एक्सरसाइज नहीं करूंगा, मैं कॉमनर की तरह डील करता हूं। जब ये इमोशनल होके बोलने लग गया, तो सब लोग अपनी चेयर से खड़े होकर बोलने लगे, हम भी अपने प्रिविलेजेस छोड़ते हैं, हम भी अपने प्रिविलेज छोड़ते हैं। एंड सेशन विच स्टार्टेड इन द मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग तक वो कंटिन्यू रहा, पूरा रात को ही सेशन चलता रहा, सब लोग अपने प्रिविलेजेस छोड़ते रहे। और कहा जाता है कि 150 रेजोल्यूशंस उसी रात को पास किए गए, और इसलिए कहा जाता है ऑन 4th of August ओल्ड फ्रांस वेंट इनटू स्लीप एंड ऑन 5th of August इट इज अ न्यू फ्रांस दैट वाज बोर्न। 4 अगस्त को फ्रांस जो सोने गया और 5 अगस्त को जो फ्रांस जगा, तब तक 150 रेजोल्यूशन पास हो चुके थे, नोबल्स के प्रिविलेजेस खत्म हो चुके थे, और ऐसा लग रहा था कि एक नया फ्रांस फॉर एग्जांपल कंपैरेटिवली वहां पे पैदा हो चुका है। फर्स्टली द रेजोल्यूशन दैट वर अडॉप्टेड, फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, क्या बोला गया रेजोल्यूशन में कि आज के बाद हम प्रिविलेज छोड़ते हैं, लेट अस हैव दिस प्रिविलेजेस शुड बी देयर, खत्म कर दो, एंड इक्वालिटी शुड बी देयर इन सोसाइटी, इक्वालिटी शुड बी देयर एवरीवेयर ऑल्सो। द गिल्ड्स दैट वर देयर, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, द गिल्ड्स वर कंपेरेटिवली डिस्ट्रॉयड। गिल्ड को क्या बोला, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट को पूरे का पूरा खत्म कर दिया। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वर ओपन फॉर एवरीवन, कि कोई भी कुछ भी काम कर सकता है, अब किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। टिथस द एक्स्ट्रा टैक्सेस दैट वर इम्पोज्ड, खत्म कर दिए गए। कॉर्वी जो चर्च कोर्ट टैक्सेस लगा रहे थे, जो अलग से नोबल्स लगा रहे थे, उसको कंपेरेटिवली खत्म कर दिया। ऑफिसेज वर थ्रोन ओपन मेरिट, कि जो भी अपने ऑफिसेज है, ऐसा नहीं कि कुछ फिक्स ही करेगा कि नोबल्स का बच्चा ही हाई पोस्ट पे जा सकता है, तो इन्होंने बोला कि कोई भी अपने मेरिट के बेसिस के ऊपर वहां पे बैठ सकता है, गद्दी के ऊपर जाके, ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट दैट इज देयर। अब फ्रांस नेशनल असेंबली ने 150 रेजोल्यूशन तो पास कर दिया। अब फ्रेंच नेशनल असेंबली ने क्या बोला कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाने की जरूरत है, वी शुड बी मेकिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। तो जो फ्रेंच नेशनल असेंबली पहले थी, जो फ्रेंच नेशनल असेंबली थी, इसी ने क्या किया कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। जैसे इंडिया का पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में कुछ लोगों ने बोला कि हम कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने की जिम्मेवारी लेते हैं। फ्रेंच नेशनल असेंबली में से कुछ लोगों ने क्या बोला, उनको चूज किया गया, एंड दे फॉर्म्ड फ्रांस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एंड सेड दैट वी आर टेकिंग अप द टास्क। इसी फ्रेंच नेशनल असेंबली को अब फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बोलने लगे, और क्या बोला, हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की तैयारी करते हैं, ताकि रेजोल्यूशन से काम नहीं चलेगा, वी नीड टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ आल्सो। और 26 अगस्त को इट डिक्लेयर्ड, फॉर एग्जांपल अडॉप्टेड डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स, इन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स को वहां पे अडॉप्ट कर लिया, एंड सेड दैट सॉवरेंटी, अब सॉवरन कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन है तो सॉवरेंटी की बात होगी। देयरफॉर इट सेज दैट सॉवरेंटी, it basically lies with the people at that point of time, people are sovereign। natural rights of men
ऑफ मेन आर देयर एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट कि नेचुरल राइट्स को कंपेटिव प्रोटेक्ट भी करे. राइट टू प्रॉपर्टी भी, कोई भी कुछ भी काम कर सकता है, कितनी भी प्रॉपर्टी उसके पास कंपेटिवली हो सकती है. रूल ऑफ लॉ और द लॉ वाज द एक्सप्रेशन ऑफ द कॉमन विल दैट वाज देयर. अपॉइंटमेंट विल बी डन बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट, की मेरिट के बेसिस के ऊपर अपॉइंटमेंट किया जाएगा. यू आर फ्री टू प्रोपोगेट योर ओन रिलीजन, आप कोई भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, दैट कैन बी देयर. एंड किसी को अरेस्ट करना है तो रूल ऑफ लॉ के कंटेक्स्ट में किया जाएगा. मेजर राइट्स फॉर एग्जांपल जीएस के लिए आपको इसको कंपैरेटिवली फॉलो करना है. सॉवरेंटी, नेचुरल राइट्स ऑफ मैन, प्रॉपर्टी, रूल ऑफ लॉ, मेरिट, रिलीजन एक्सेट्रा. बट देयर इज अ क्रिटिसिज्म दैट इज देयर. 26 अगस्त को ये डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स को अडॉप्ट किया था, जो ये बात की कंपैरेटिवली बातचीत कर रहे थे. नेचुरल राइट्स ऑफ मेन तो है, लेकिन विमेन की बात कहां पे है? दैट वाज कंपैरेटिवली नॉट टेकन टू कंसीडरेशन. प्रॉपर्टी की बात है, जिसका मतलब है इट इज प्रो रिच. आपको पहले ही बताया था मिडिल क्लास वाज कंपैरेटिवली द मेजर हु वाज कंपैरेटिवली पार्टिसिपेटिंग. दूसरी तो नहीं, इट इज कंपैरेटिवली प्रो रिच. ये जो कंपैरेटिवली बात करते हैं, दैट इज अ नेगेटिव थिंग दैट हैज बीन देयर एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. पुअर सेक्शन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं था. इट वाज दिस मिडिल क्लास which was educated the most and which basically benefited the most also out of this revolution that was there. Initially जब revolution हुआ, they were saying, जैसे for example हम कहते हैं Montesquieu, इसने क्या बोला था? एब्सोल्यूट मोनार्की हमें नहीं चाहिए, इसकी जगह पे क्या चाहिए? कौन सी मोनार्की बोला था इसने? he said that we need a constitutional monarchy. मतलब राजे की पावर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सके. तो एक बात तो श्योर है कि राजा तो वो चाहते हैं, ऐसा नहीं कि राजे के खिलाफ है, राजा चाहते हैं, बस उसकी पावर कंपेरेटिवली कम करना चाहते हैं. तो इसलिए जब राजा भी वहां पे लुइस 16 की भी बात हुई, तो वहां पे उसको भी ऐसा नहीं कि खत्म ही कर दो, इसने क्या बोला? आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर होंगी. इट वाज द किंग हैज बेसिकली टू बी अपॉइंटेड दिस हैविंग कॉन्स्टिट्यूशनल पावर एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. इज इट क्लियर? पढ़ो जितना. अभिनव दोबारा बोलो. अच्छा, बाकी कल कर लें, कल ही करेंगे, अभी इतना रिवाइज कर लो, कल करेंगे. आई नो कि काफ़ी हो गया है. हाँ, काफ़ी खींचा गया आज. बिकॉज मैंने भी सोचा था कि बिगिनिंग ऑफ रेवोल्यूशन तक, उससे पहले वाला पोर्शन खत्म होगा, बिगिनिंग ऑफ रेवोल्यूशन कल करेंगे. चलो वो भी कवर हो गया तो अच्छी बात है. सेम टॉपिक. अच्छा, शोशो में है पूरा. ओके, ठीक है. हाँ, इंटरेस्टिंग तो है. कौन सा उठा ले? हाँ, अच्छा है, ये इंटरेस्टिंग है. लुइस 13 वाज द कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क इन फ्रांस एज पार्लियामेंट. लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क तो था, लेकिन पावर इनिशियल फेज में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था. इनिशियल फेज में आप ऐसे ले लो कि दोनों पावरफुल हैं, लेकिन सेंट्रलाइजेशन इसने पूरी इंट्रोड्यूस कर दी थी. सोशियोलॉजी का शायद उससे पहले ही कर देंगे. आज सर, आज या कल में सर टाइम बता देंगे. मोस्ट ऑनली की 18-19 के आसपास शुरू कर रहे हैं. कल का टाइम दीजिए, कल तक वो फाइनल कर देंगे. ठीक है, चलो जी, इसको फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं. कल कंटिन्यू करते हैं. एंथ्रो भी अभी रुक के करेंगे, स्टार्ट हो, सभी स्टार्ट करेंगे. एंथ्रो 20 के बाद है, तो कल कंटिन्यू करेंगे. एनसीईआरटी सिनॉप्सिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम थर्सडे. वो थर्सडे से आपको बताया था वो स्टार्ट हो जाएगा, तो वो करना होगा आपको. बाकी अभी 3 दिन ज्योग्राफी की क्लास है, यस, फिर उसके बाद मेरी होगी. ओके फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.